Good morning, students. Today we will be reading about Delhi Sultanate. This period starts from 1206 AD. India had a long history of foreign attacks, invasion, and it is quite obvious also when you are living in an area which is surrounded by very poor, backward neighbors, and if you are weak, definitely the neighbors will attack. And because the neighbors are not having anything to eat also, and you are having lot of resources, so it is quite obvious that neighbors can attack if you are weak. So if you are in an area where you are like well to do and neighbors are not having anything, the first thing, the house should be able to resist any kind of such invasion. History itself means a story with messages, and this is one of the message of the history. कि भाई अगर आपके आसपास बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे आसपास अफगानिस्तान या ईरान, इराक, तो फिर आपकी बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. इट इज अ नेसेसरी थिंग. Delhi Sultanate can be divided into, coming to the chapter, first it is given in RBSC book about that the first foreign attack was a naval attack in a naval attack in 636, Arab naval attack. Second was in 712 also. Muhammad bin Qasim had attacked, and Qasim and Raja Tahir had a battle, and Raja Tahir fought very bravely, but there are certain reasons why the problems were there. And then come Muhammad Ghaznavi and Ghori. Muhammad Ghaznavi attacked, and that time the Hindu Shahi kingdom was there in Kashmir, Punjab, Sindh region, and they fought very bravely. The Shahi kingdom here, the name is Shahi. The word Shahi does not mean the royal kingdom, it is Hindu Shahi, the name was that. Jayapal, Anandpal, they fought very bravely. Then Muhammad Ghori एक छोटी सी जगह है जहां उसका वो रूलर था, इंडिया पे अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे. राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली के, he fought very bravely but ultimately was defeated. This we will about Muhammad Ghori and the attack we will do in the other chapters. In this chapter is after Muhammad Ghori, when he went back, he established the slave dynasty. Slave here means he had one slave and उसको राजा बना देता है, तुम यहाँ का राजा है, कंट्रोल करना. And from here Qutbuddin Aibak. Now first we will discuss the different dynasties which ruled in the Delhi Sultanate. The first was the Ilbari slave, and this dynasty ruled from 1206 to 1290. Then second was the Khilji dynasty from 1290 to 1320. This was the Khilji dynasty. Then Tughlaq. The Tughlaq dynasty 1320 to 1413. Similar. 1/4. Then the Sayyid
स्पेलिंग एक बार आप देख लेना। 1451 छोटा सा पीरियड था, लास्ट में लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 to 1550. So these were the different dynasties which are ruled during this period. Now the dynasty Delhi Sultanate start with slave or dynasty Ilbari या मामलुक। मामलुक का मतलब होता है ओल्ड, मतलब एक टर्किश स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदता है तो वहां से कि भाई वो खरीदा हुआ स्लेव है, उसने रूल करा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 वो रूलर बनता है। His capital was not Delhi, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। His capital was लाहौर। लाहौर में वो अपनी राजधानी बनाता है। 1210 तक वो रूल करता है। In 1210 he died पोलो खेलते हुए, हॉर्स पोलो चौगन जिसे कहते हैं, खेलते हुए गिरने से उनकी डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार दिल्ली की, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहते हैं एक मंजिल, जो फर्स्ट मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दी थी। बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराई थी, बट स्टार्टिंग इन्होंने कराई थी और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके सम्मान में बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, रेस्पेक्ट में बनाई थी। स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, बट कंप्लीट इल्तुतमिश के टाइम पे पूरा वो मीनार की जो शेप ली गई थी। और ही इज आल्सो नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श इनको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। उनके जो कोर्ट थे उसमें हसन निजामी फेमस स्कॉलर वो उनके कोर्ट में होते थे, जो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ताजुल मासीर उन्होंने लिखा था, फेमस स्कॉलर अपने टाइम के, वो उनके कोर्ट में हुआ करते थे। 3-4 साल का उनका पीरियड था, बहुत कोई कॉइन वगैरह या उन्होंने नहीं निकलवाए थे, बट ही वाज द, सम स्कॉलर बिलीव कि ये फाउंडर थे, बट बहुत ज्यादा उन्होंने कोई एम्पायर एक्सपांड वगैरह नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा आराम शाह वो रूलर बनता है। कुछ ही दिनों में इवन वहां के जो नोबल्स वगैरह हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं। वैसे जनरली पढ़ाते हुए कहता हूँ, बस वो आराम ही करते थे और कुछ करते नहीं थे, उनको हटा दिया गया। और उसकी जगह जो नया रूलर बनता है इल्तुतमिश। कई लोग कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश ओनली, क्योंकि अच्छा खासा टाइम भी मिला उन्हें रूल करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है रूलर बनते ही कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देगा। तो इल्तुतमिश को ही सबसे ज्यादा टाइम मिला था, 1210 से लगभग 1236 यानी 26 ईयर रूल करने का मौका मिला। तो ही वाज एबल टू consolidate the power, all the things he was able to do. This was his achievement. Then he divided the kingdom into iqtas. इक्ता जनरली ये बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा किंगडम है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको ये जमीन का दे दिया वो कि यू विल बी द इक्तादार। इक्तादार लाइक
फ्यूडल सिस्टम ओनली। एक तरह से आप यहाँ के लोकल रूलर टाइप हो गए, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, मेंटेन करनी आर्मी एक्सेट्रा। सो इंस्टेड ऑफ सैलरी दे वर गिवन कि भाई ये जमीन तुम्हारी है, तुम इस पे रेवेन्यू कलेक्ट करो। तो इस तरह का इक्तदार, एंड इक्तदार वाज ट्रांसफरेबल आल्सो। ऐसा नहीं कि भाई ये तो ओनर नहीं है, इंस्टेड ऑफ सैलरी यू आर बीइंग गिवन दिस लैंड, यू कलेक्ट द रेवेन्यू, और वो आपकी सैलरी के तौर पर। तो इक्ता सिस्टम ही स्टार्टेड। He was the ruler who got the title of Sultan from the Khalifa of Baghdad. बगदाद से उन्हें ये टाइटल मिल गया कि भाई हाँ आप यहाँ के सुल्तान हो। तो सुल्तान का टाइटल है कि भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप यहाँ पर, उनसे सर्टिफिकेट मिल गया, यूँ कह सकते हैं। खलीफा इज अ वेरी ऑनरेबल पोजीशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो बगदाद के खलीफा से उन्हें रिकॉग्निशन मिल गया, ये कह सकते हैं। सो ही वाज लाइक कि भाई अब सारा पॉलिटिकल मैटर वगैरह सारे यू कैन हैंडल। इन 1226 he attacked Ranthambore, and Ranthambore वो उन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर दिया। सिमिलरली मालवा was also in 1226, मालवा को भी उन्होंने अपने अंदर शामिल कर दिया। एम्पायर का अच्छा खासा एक्सपेंशन इल्तुतमिश ने किया था, तो दैट वाज आल्सो हिज अचीवमेंट। उनके एक अचीवमेंट में ये भी आता है कि फेमस मंगोल चंगेज खान who was like destroying most of the empires या kingdoms in Central Asia, वहाँ उनसे इंडिया को बचा कर रखा। ये इल्तुतमिश का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, रणथंबोर वगैरह जीतने से भी बड़ा। कहते हैं सेंट्रल एशिया में जलालुद्दीन नाम का जो रूलर था जिस पे चंगेज खान ने अटैक करा, वो वहां से भाग के इंडिया आया कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश को कहा कि मुझे शरण दे दो, ये बचा लो। इल्तुतमिश ने कि चंगेज खान से लड़ाई मोल नहीं लेनी, तो उसने मना कर दिया कि मैं आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर कोई भी शरण नहीं दूंगा। तो दैट वाज वन वे कि उन्होंने इंडिया को बचाए रखा चंगेज खान से। ये उनके एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा उनके एम्पायर रूल का। Now, next important figure in the Delhi Sultanate is रजिया सुल्तान। कहते हैं रजिया सुल्तान को दिल्ली के लोगों ने, वहां के नोबल्स ने राजा बनाया, सुल्तान बनाया। सुल्तान बनने के बाद वो कुबा या कोट वगैरह पहनती थी, कुल्ला कैप वगैरह लगाती। दैट मींस शी यूज्ड टू वियर लाइक मेल अटायर, जो आदमियों के लिए ड्रेसेस होती हैं, शी यूज्ड टू वियर दैट। और ऐसे राजा जो पुराने सुल्तान थे उन्हीं के तौर पर वो शी स्टार्टेड रूलिंग। रूल करते हुए एक नाम आता है मलिक जमानुद्दीन याकूत, पॉपुलरली नोन एज याकूत। एक स्लेव था, एबिसिनियन स्लेव, जो रजिया सुल्तान के वहां था। एंड ही वाज मेड अमीर आकूल, मतलब जो हॉर्सेस वगैरह स्टेबल, जो भी घोड़ों के अस्तबल का जो इंचार्ज सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। दैट वाज अ वेरी पावरफुल पोजीशन। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कैबिनेट में, तो कैबिनेट मिनिस्टर टाइप के साथ सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से एक याकूत को बना दिया। लोग नाराज थे, याकूत को क्यों बनाया, एबिसिनियन स्लेव है। और यहाँ पर ज्यादा जो कहते हैं ना जो पोजीशन में पावर, वो टर्किश लोगों की ज्यादा चल रही थी इस समय। थोड़े टाइम में काफी अपोजिशन भी होने लगा। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, तो इससे विरोध भी काफी था। कहते हैं 1240 में अतुनिया सरहिंद का जो गवर्नर थे अतुनिया, उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट कर दिया तो रजिया सुल्तान ने याकूत को और भेजा कि भाई वो रिवोल्ट हो रहा है, वहां पर जाकर कंट्रोल करो सिचुएशन। ही वेंट देयर
वहाँ का अतुनिया का जो वो था, अतुनिया, उनके जो आर्मी वाले थे वो याकूत को मार देते हैं। याकूत वाज किल्ड इन दैट ऑपरेशन। रजिया सुल्तान वाज अरेस्टेड। अरेस्ट कर लेते रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को वहां ले जाते हैं दुनिया। फिर एक कहानी है कि साहब याकूत को मार दिया, रजिया सुल्तान को वहां ले गए। बहराम शाह वाज मेड द किंग ऑफ दिल्ली। वहां पे सुल्तान बना दिया बहराम शाह, जो रजिया के भाई थे। उनको काबिलियत में रजिया सुल्तान रहा, इंटेलिजेंट, बहुत शार्प लेडी। रजिया वहां जाती है, अतुनिया जो गवर्नर को कहते हैं, तो अतुनिया से वो शादी कर लेती है। शी वाज इम्प्रिजन्ड है, वहां के राजा जो सरहिंद के राजा उनसे शादी कर लेती है। वो प्लान करती है वापस अपन अटैक करते हैं, कि भाई वापस अपनी आर्मी है, अपन दिल्ली पे अटैक करते हैं और बहराम शाह को हटाकर राजा आप राजा बन जाना। इस तरह का वो एक प्लान बनाती है। सरहिंद का जो गवर्नर होता है वो तैयार हो जाता है, वो क्या अटैक करते हैं। बट बहराम शाह किल्ड कर बोथ ऑफ देम। बहराम शाह दोनों को मार देता है, यानी रजिया और उसके हस्बैंड अतुनिया, दोनों को मार दिया जाता है। इस समय जो टर्किश लोग होते हैं उनको बहुत पावर होती है उस समय। रजिया कुछ हद तक चाहती है कि जो नॉन टर्किश नोबल्स वगैरह हैं, जो भी अमीर हैं, उनको थोड़ा सा पावर में लाया जाए। दिस वाज हर प्लान, बट वो इतना सक्सेसफुल होता नहीं है। बहराम शाह राजा बन जाता है। बहराम शाह राजा बनता है 40 से 42 तक का जो पीरियड है उसमें बहराम शाह राजा रहता है। तो ये मेड किंग है फॉर 2 years। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह became the king। और ये 2 साल रहता है, ये 4 साल, ये भी कोई बहुत लंबा कोई इंटरवल नहीं रहता है। फिर होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद ये 46 से 65 लंबा पीरियड। And he became a king with the help of Ulugh Khan। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि सपोर्टेड बाय उलूग खान। स्लेव होता है वो, मतलब सॉरी नॉट स्लेव, टर्किश। उस समय एक ग्रुप बन जाता है 40 लोगों का, जिसे 40 भी कहते हैं। टर्किश जो नोबल्स वगैरह अमीर हैं उनका एक बड़ा पावरफुल सा ग्रुप बन जाता है टर्किश अमीर का। उसमें ये भी एक उलूग खान, जो बाद में बलबन नाम से फेमस होता है, ही बिकेम द वन ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन और नसीरुद्दीन को राजा बना देता। यहाँ पर वो 40 लोगों का जो ग्रुप है वो लाइक किंग मेकर, डिसीजन सारे वही लेते थे, वो जो कहते थे वो फाइनल है। मतलब ये राजा वगैरह सारे वो चेंज करते रहते थे। तो ये 40 जो है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं स्पेलिंग एक मिनट बुक में that is the group of 40 known as चहलगामी। उलूग खान खुद उसका एक मेंबर होता है जो नसीरुद्दीन को बना देता है। इब्न बतूता वगैरह ऐसा लिखते हैं कि नसीरुद्दीन को बाद में बलबन ने ही मार डाला। उलूग खान जिसने राजा बनाया बाद में उसी ने मार डाला। उलूग खान खुद को वैसे ही, जब ये राजा था नसीरुद्दीन, तब खुद को नायब की पदवी खुद नहीं देती थी, कि मतलब डेप्यूटी मैं, ये राजा सेकंड नंबर में। तो इस तरह से स्टोरी चलती है। बलबन राजा बनता है, बलबन गयासुद्दीन। तो ये कहते हैं बड़ा ये अलग
टाइप का नेचर बलबन का रहता है। एंड बलबन रिमेन इन द थ्रोन या एज राजा हो जाता है करीब 20 साल। और ये वो पीरियड है जब पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में वो चेंज लाता है। बलबन के लिए कई अच्छी और कई बुरी स्टोरीज वगैरह चलती है। ना बलबन जो कि रूलर बना 1266 से 86 करीब 20 साल रूल करा। सबसे स्ट्रिक्ट रूलर्स में से आता है। मतलब कहते हैं कि उसे हंसना पसंद नहीं था। कोर्ट में जब दरबार लगेगा कोई हंसेगा, मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो मानता था कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से ही रूल किया जा सकता है। विदाउट डिसिप्लिन द किंग कैन नॉट रूल, ये उसका मानना था। तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बिलीव करता था। यहाँ तक कि जो भी उसके अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी भी रूल धर्म वगैरह का बिलोंग करता हो, उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दिए जाते थे। बलबन के बाद उसका बेटा बनता है कायकबाद। वो भी ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाता है और कैमूर की हटा के जलालुद्दीन खिलजी जो है वो राजा बन जाता है। और यहाँ पर ये पूरी डायनेस्टी खत्म हुआ, अगली डायनेस्टी चालू हो जाती है, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स अपने सिलेबस में नहीं है, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज जलालुद्दीन। बलबन के लिए ये भी कहते हैं जिल्ले इलाही की, वो खुद को टाइटल देता था। नियामते खुदाई, मतलब खुदा की परछाई है, खुदा का सारा ग्रेस जो है, आशीर्वाद है, उसे प्राप्त है। तो वो खुद को ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड मानता था। बलबन की खासियत थी, वो मानता था कि सब है जो है किंग है, किंग के अलावा कोई कुछ नहीं, सारे डिसीजन वो लेगा। 40 साल जो चहलगानी थी उसको भी वो धीरे धीरे खत्म कर देता है, कमजोर कर देता है। बाद में जलालुद्दीन खिलजी रूलर बनता है। बहुत कम टाइम के लिए एक अच्छा रूलर इंडिया में रूल करता है। बहुत ओल्ड एज में वो राजा बन पाता है। 70 इयर्स की एज होती है जब वो राजा बनता है। सबके साथ बड़ा पीसफुल उनका व्यवहार था, किसी से कोई ज्यादा पंगे नहीं थे। और उनकी जो डॉटर थी उनकी शादी उलुग खान से कराते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन, ये उलुग खान बलबन वाला उलुग खान नहीं, और मंगोल उलुग खान जो मंगोल चंगेज खान के जो रिसेंट के वंशज थे उनके साथ वो शादी करा देता है अपनी डॉटर की। कौन? जलालुद्दीन खिलजी अपनी डॉटर की शादी मंगोलों के साथ करा देता है ताकि एक पीस बनी रहे, शांति बनी रहे। बट कुछ साल में ये इनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो राजा बनता है अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन का सन इन लॉ भी होता है और नेफ्यू भी होता है। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द रूलर। जलालुद्दीन का पीरियड बहुत अच्छा, कम्युनल हार्मनी भी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अलाउद्दीन उनका अपोजिट। हिस्ट्री में कहते हैं एक जैसा होता है, दूसरा उसका थोड़ा अपोजिट ही रहता है। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी जो राजा बनता है, उनका जो फर्स्ट एक्सपीडिशन था वो गुजरात के लिए, रायकरण वहां के राजा थे, उनके साथ थोड़ा बहुत उनका समझौता होता है। देन रणथंबोर, फेमस हमीर देव यहाँ पे राजा होते हैं। कहते हैं हमीर देव ने 2 मंगोल सोल्जर्स को अपने यहाँ पर शरण दे दी थी। इससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पे
हमला करते हैं। हमीर देव बहुत ब्रेव राजा रहे रणथंभौर के, हमीरहट के लिए फेमस है, साहब जो कहते थे वो करके ही मानते थे। अल्टीमेटली वाज आल्सो डिफीटेड। देन चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, राजा होते हैं राजा रतन सिंह। चित्तौड़ पर को वो एक्वायर कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद कर देते हैं। और एक वो जायसी की कहानी है पद्मावती वाली, जो कि ऑल्दो कोई ट्रू स्टोरी पर बेस नहीं है, क्योंकि जायसी बहुत बाद में हुए तो, बट ये वो चित्तौड़ का जो इंसिडेंट है काफी फेमस। मालवा पे अटैक करते हैं, डेक्कन पे देवगिरी, डेक्कन में भी वहां पर अटैक होता है। तो और वो अपने आप को टाइटल देते हैं कि सेकंड सिकंदर, मैं तो सिकंदर की तरह हर जगह जहां पे जा रहा हूं वहां पे रूल करूंगा। और वो ये भी मानते थे कि एक किंगशिप डजंट नो किंगशिप, मतलब परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। भाई जो राजा है उसके लिए इंपॉर्टेंट वो हो जाता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं वो उसका रिलेटिव हो। तो किंगशिप डज नॉट नो किंगशिप, परिवार का उसमें कोई वो इंटरफेरेंस वगैरह वो नहीं मानते थे। मलिक कफूर जो लेके आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं रामेश्वरम तक मलिक कफूर को भेज दिया कि जाओ वहां तक हरा के आता हो, तो पूरा डेक्कन पार करते हुए रामेश्वरम तक पहुंच जाता है मलिक कफूर। रामेश्वरम में से कोई एक मॉस्क वगैरह बनाते हैं, बाकी ऐसा एक्वायर वगैरह नहीं किया। पर सबसे बड़ा एम्पायर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सल्तनत पीरियड का बना लिया था। तो ये उसका एक अचीवमेंट कह सकते हैं। सिवाना पर अटैक करा जहां पर शीतल देव थे। अलाउद्दीन के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह राजा बनता है। कहते हैं उस टाइम तो शायद मलिक कफूर को कहा जाता है कि वो गद्दी पर बैठ गया, और बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बिकेम द रूलर। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह राजा बनता है, एंड फाइनली खिलजी डायनेस्टी कम टू एन एंड। ये कोई बहुत सक्सेसफुल रूलर्स नहीं रह पाए, टाइम भी नहीं मिला था ज्यादा और सक्सेसफुल भी नहीं थे। अलाउद्दीन की जो पॉलिसीज थी बहुत ही हार्श पॉलिसीज रही कुछ हद तक। बाद में रिलीजियस इंटॉलरेंस वगैरह सारी प्रॉब्लम्स बाद में बढ़ती गई। देन केम द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में पहला रूलर जो होता है वो गियासुद्दीन तुगलक राजा बनता है 1320 में, एंड ही रिमेन्ड टिल 1325 गियासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी पहला रूलर गियासुद्दीन तुगलक। 5 साल ही रूल करता है, उसमें एक बेटे की डेथ हो जाती है। फाइनली दूसरा बेटा राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक काफी कंट्रोवर्शियल, मतलब कंट्रोवर्शियल इसलिए भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं साहब पागल राजा था, समझ में नहीं आता था, और कुछ कहते हैं कि अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही एडवांस था। टाइम से एडवांस मतलब आज हम 2020 में, और अगर कोई ऐसी चीज की इमेजिन करें जो आज के 100 साल बाद होने वाली है तो उसे लोग कहते हैं कि पागल है। तो वही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ था। इसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसी रीजन से, जैसे शिफ्टिंग द कैपिटल को दिल्ली से वो शिफ्ट करता है देवगिरी तक। कैपिटल शिफ्ट करना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल चीज है, ऐसा कोई इजी नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा लाहौर से दिल्ली लाए गई थी कैपिटल, दूसरा यहाँ पर दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहता है पर सक्सेसफुल नहीं होती है। दूसरा, he wanted to
कॉन्कर इराक के वहां पर जाके कुछ अटैक करना चाहता है, बड़ी आर्मी वगैरह इकट्ठी करता है, इराक में कंडीशंस चेंज हो जाती है, वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है और बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है उसमें पैसा। रेवेन्यू बढ़ा दिया था दोआब के रीजन में, जो गंगा यमुना दोआब का रीजन है वहां पर रेवेन्यू एकदम बढ़ा दिया जाता, पीपल रिवोल्टेड, इतना ज्यादा रिवोल्ट, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ महामारी भी चल रही थी और उस समय इकोनॉमिक कंडीशन भी सही नहीं थी, और उस पीरियड में रेवेन्यू बढ़ा दिया तो उसमें भी रिवोल्ट हो गया। फिर टोकन करेंसी, रेवेन्यू की भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। टोकन करेंसी, कॉपर वगैरह की टोकन करेंसी चालू करी, वो भी सक्सेसफुल नहीं थी। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसफुल नहीं हुए, जिसकी वजह से उसे उतना सम्मान वगैरह नहीं दिया जाता है जो कि बाकी राजाओं को दिया गया। नेक्स्ट रूलर फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक अपने जीते जी फतेह खान को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर देता है, बट जिसके लिए फिरोज तुगलक जाना जाता है एक तो कैनाल सिस्टम, शायद अपने टाइम से काफी एडवांस हुई, इसकी भी सोच थी कि इतने अच्छे कैनाल सिस्टम, गंगा यमुना का जो बेल्ट है वहां पर कैनाल इरिगेशन का सिस्टम डेवलप करा। फिरोज शाह कोटला जो महल और सिटीज टाइप बसाए, उसके लिए आयरन पिलर, अशोका के आयरन पिलर को मंगाया गया टोपरा मेरठ वगैरह से। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने करा है तो फिरोज तुगलक ने करा है। दिल्ली के आसपास कहते हैं 1200 बाग गार्डन्स वगैरह डेवलप करे, तो ये फिरोज तुगलक को उसका क्रेडिट जाता है। बट स्लेव्स इसके पीरियड में सबसे ज्यादा बढ़े, और स्लेव्स को मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंधनगढ़, यानी ये स्लेव्स को मेंटेन करने का डिपार्टमेंट बनाया गया। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ऐसा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो रूलर्स बने वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। लास्ट में नसीरुद्दीन राजा बनता है। नसीरुद्दीन के टाइम पे तैमूर 1398 में तैमूर इन्वेडेड इंडिया, और तैमूर के बाद कुछ बुक्स में जैसे दौलत खान का आता है, बाकी अपने आरबीएससी की बुक में दौलत खान का जिक्र नहीं है। तो अगर आप कोई और सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आरबीएससी की बुक में दौलत खान का शायद जिक्र नहीं दे रखा है। डायरेक्ट उसके बाद सैयद डायनेस्टी चालू हो जाती है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।